Bucharest Airport, and from here the third batch of students will be going to on an Air India flight 19422 to Delhi. So let me speak to some of the students who have travelled very far and have had some harrowing experience. So please tell me, what's your name and tell me what have you gone through while coming here? So my name is Shreya Mishra and I'm from the Ivano-Frankivsk National Medical University, and literally I would say that it was the worst experience of my life. We have been waited for the 2 days and they are not allowing us to go. They are mostly allowing the Ukrainian people to go. They are also shooting the bullet on us. Not on us, but they are putting the bullet and they're shooting on the air. But it was really scary for us because we have never experienced this kind of situation in our life. So tell me, what has been your experience? Come forward so that people can do their check-ins. Yeah. Yes. The priority is Ukrainians. They are first letting Ukrainians to let out. After that, they are letting us to let out. Even they are just doing that to make us fair. They are using their bullets to make us fair and So just move back away. hang on, let me just be clear here. So the Ukrainian forces are using bullets or Yes, what? yes. They are on air firing. They are doing just to make us fair, and they did it for 3 times to make us fair and just move away from the borders because the Ukrainian girls has been stuck between us. Okay. Yeah. तो आप border पे थे. Yes. You were at the Romanian-Ukrainian border. Yes, Which yes. part did you come from? We came from Ivano-Frankivsk of Ukraine. Okay. Yeah. And you were at the borders. Were you physically present at the border, or We were physically present at the border from last 2 nights. And they are not letting us to go out from there. They're letting everyone except us. And there are thousands of our students still stuck there and they are not letting us. and the embassy officials are there to help you? Even the embassy yeah. officials are there. What they are saying is that कि हमारे पास buses नहीं है, हमारे Yeah, पास बस नहीं है, exactly. हम नहीं कर सकते. तो नहीं कर सकते तो हमें क्यों बुलाया They border did पे? it for 2 days that they made us feel like they will help us, but they didn't. Ma'am, actually, what the situation is that there are thousands of students at the Romania border, and ma'am, they were not allowed to come inside. And ma'am, and like with them, the Ukrainians are also there, and there is a lot of crowd. And the men, army men, they are just firing so that the crowd moves off, ma'am. But the girls are crying, ma'am, because there was a lot of panic situation, ma'am. And the way I entered, मैं like धक्का मुक्की करके अंदर गई एंड मैम माई लगेज वॉज आउटसाइड द गेट एंड वी वर जस्ट क्राइंग, हमारा लगेज तो दे दो, हमारा लगेज तो दे दो. एंड लाइक ओनली 15 गर्ल्स सिंस मॉर्निंग वे आर अलाउड टू गो इनसाइड. मैम ओनली 15 गर्ल्स. नहीं तो मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आप लोगों को बुलाया गया था कि आप वहाँ पहुँच गए थे अपने आप से? मैम हम अपने कन्वीनियंस से आए हैं बॉर्डर पे मैम, बिकॉज आई एम द स्टूडेंट फ्रॉम इवानो-फ्रैंकविस्क यूनिवर्सिटी. वहाँ पे सिचुएशन लाइक ऐसा हो गया था कि कभी भी अटैक हो सकता है. आज कल भी स्टूडेंट्स अभी बंकर में बिताएं, अभी हमारी यूनिवर्सिटी से कल आएंगे वो. बट हमको ऐसा था कि हम खुद अपने कन्वीनियंस से बॉर्डर पे आना पड़ा बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटी की जो बस थी वो कैंसिल हो गई थी. दे सेड ऑन संडे इट विल बी, बट वी कांट स्पेंड वन नाइट देयर. सो मैम हम अपने कन्वीनियंस से आए सब, बसेस से आए. ना हमने एडवाइजरी जारी हुई थी ना, उन्होंने खुद बोला था कि तुम बॉर्डर तक आओ, आगे का हम देख लेंगे. राइट, हम बॉर्डर पे आके बैठे हुए, इतनी ठंड थी वहाँ पे, हमारे पास रहने की जगह नहीं है. ये कोई सिचुएशन है मैम बस ने हमें पहले ही उतार दिया. हम 15 किलोमीटर वॉक करके आए हैं. और वॉक करने के बाद भी हम वहीं रहे. पता है आपको, सुबह से शाम तक वो वहाँ पे थे. एक तो इंडियन एम्बेसी की कोई थी, हमने उनसे पूछा, वो बोलते कि हम बस अरेंज करेंगे. वो बोलती है बस अरेंज करेंगे एंड देन शी वाज नॉट अरेंजिंग एनी बस. इवन फायरिंग वगैरह भी लोग करने लगे थे. इतनी दिक्कत हो रही, इतना ज़्यादा रश हो रहा है कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के और खोल भी नहीं रहे दरवाजा कि एटलीस्ट हम लोग अपने अंदर एंट्री कर सके. इतना ज़्यादा धक्का और इतना रश हो रहा है कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भी जा रहे हैं, लेकिन कोई परवाह किसी को कुछ भी नहीं है. मैम हम सब अपने भाई बहन के साथ आए, रिलेटिव्स के साथ आए, एंड दे लेकिन उन आर लोगों को बॉयज अंदर नहीं करने एंड दे आर बॉयज. आई नो कि गर्ल्स को प्रेफरेंस मिलती है, बट वो भी बॉयज हैं. उन लोगों को पीछे कर दिया कि लेट गर्ल्स एंटर, एंड सुबह से लेके बस 15 गर्ल्स ही अंदर आई हैं. और हम अभी हमारा आधा लगेज बॉयज़ के पास है. उनकी कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि वो कब आ रहे हैं. अभी हमको बोल रहे हैं, अभी हमको बोला जा रहा है कि अब जो तुम्हारी पॉसिबल फ्लाइट है कि चले जाओ. आई नो कि जाना ठीक है, बट दे आर आर फैमिलीज, और हम कैसे चले जाएं? उनके पास हमारा लगेज है, सारा सामान है. एंड लाइक वी हैव, किनके पास सामान है आपका? मैम जो हमारे फ्रेंड्स पीछे रह गए, ग्रुप मेट्स पीछे रह गए. एंड देयर इज वन थिंग, उनका रियल ब्रदर अटका पड़ा है.
तो लाइक उनका सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि वो फ्लाइट में बैठे भी या नहीं बैठे। पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि कब हाँ, वो लोग आएंगे, कब लोग आएंगे। इतनी ठंड हो रही है कि वो लोग आ भी नहीं पा रहे। ठंड बहुत ज़्यादा है कि लड़कों के लिए भी तो ठंड होती है, ऐसा नहीं इतना खींच के सामान लेकर आए, 15 किलोमीटर खींच के सामान लेकर आए, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। मैम और फिर भी बहुत नहीं था कि हम लोग मैम लाइक लक बाय चांस भी 15 गर्ल्स केम मैम, बट जो बच्चे कल से आए हुए हैं बॉर्डर पे, कल से आए हुए हैं, उनमें से लाइक हमारी वैनो फ्रैंकविस के स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट थे, उसमें से एक ही लड़का अंदर एंटर हुआ, 4 लड़के कल से वेट कर रहे हैं मैम बॉर्डर पे, अभी तक एंट्री नहीं मिली। तो आप समझ सकते हो, वो तो हम ये थे कि हम आज सुबह के आए, हम 15 लड़कियों को अंदर कर दिया, बट हमारी वैनों से कल से बच्चे आए हुए हैं, अभी तक एंट्री नहीं मिली है। तो आप लोग, एक मिनट, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि यहाँ कहा गया है कि आप ऑफिशियली जो अपना एम्बेसी है उनके पास अपना डिटेल्स भेजें और फिर वो बुलाएं तब आप आएँ। यस मैम, मैम भेज रखा है मैम, सब कुछ भेज रखा है मैम, बट द एडवाइजरी नोटिस आया मैम, हमारे पास है मोबाइल में एडवाइजरी नोटिस आया दैट द स्टूडेंट्स आर अलाउड टू स्टे वेयर एवर दे आर टिल द ऑफिशियल नोटिस कम्स। एंड मैम जो हमारा जो यूनिवर्सिटी का बस था कल था वो कैंसिल हो गया, तो मैम वहाँ पे कभी भी अटैक हो सकता है, और मैम हमारा पैनिक सिचुएशन है, हम लोग खुद अपने कन्वीनियंस से बसेस करके हम बॉर्डर आ गए। अच्छा, तो आपको ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया लेकिन आप बॉर्डर आ गए। बॉर्डर आ गए मैम, क्योंकि हमारा इवेनो आज ऑलमोस्ट खाली हो चुका है मैम, इंडियन सारे आ गए। तो मैम आप बताओ, हमारे सारे फ्रेंड्स कह रहे हैं यार चलो चलो, खतरा है, रुकना ठीक नहीं, तो मैम हम भी क्या करें। मैम हम सब हॉस्टल की साइड से आए मैम, हमारा आज इवानो का पूरा हॉस्टल खाली हो गया। हाँ जी, खुद प्रॉपर टैक्सी करके आए, किसी के उस पे भरोसे पे नहीं आए, क्योंकि इतनी दिन से परेशान हो रहे हैं लड़के, 2-2 3-3 दिन तक के भूखे प्यासे पड़े हैं। मैम उन लोगों के लिए तो कुछ एटलीस्ट उन लोगों के लिए तो बिल्कुल करिए। लड़कियां आ जा रही हैं लेकिन लड़कों का क्या है, वो 2-2 दिन से भूखे प्यासे और ठंड में कंबल वगैरह नहीं है कि एटलीस्ट मैम हम जो 15 किलोमीटर चले हैं, बसेस बहुत ज़्यादा बहुत कम है, इसलिए बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसा करिए कि बसेस का क्वांटिटी बढ़ा दिया जाए। There is now a situation of panic developing here as the war zone intensifies, and people are, as you heard, children or students are turning up on their own because the hostels are being evacuated. It is panic.